ये मैंने शूट बहुत पहले कर ली थी किल से। ये बहुत दिल के करीब है ये फिल्म, क्योंकि बहुत समय दिया है मैंने इस कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए। चलो शारीरिक तकलीफें तो हुई हुई, लेकिन मानसिक तकलीफें भी बहुत हुई मुझे। एक्शन कभी भी मेरे लिए वो नहीं रहा है मज़ेदार जिसमें बस लोगों को मार रहे हैं। उसके पीछे कोई कहानी होनी चाहिए। और आई थिंक द बिगेस्ट एक्शन हीरो वीव एवर हैड मिस्टर अमिताभ बच्चन। I was waiting for the right project to work on. You know, मेरा mentality हमेशा से ऐसा रहा है कि I've never believed in taking up work for the sake of it. It has to be something that calls out to you. It has to be a good team. पहले तो मुगले आजम बनती थी ना, तो कोई सवाल नहीं करता था। अभी ये फिल्म जो जमा टिका के हमने बनाई है और स्टाइलाइज्ड वे से बनाई है, इसको कुछ चीजों को, कुछ बेमिसाल चीजों को वक्त लगता है, और ये उनमें से एक है। वेल इट्स द नेम ऑफ द गाय फर्स्टली एंड जैसा कि आप लोग आजकल देख रहे हैं कि अलग अलग किस्म के नाम आ रहे हैं, कुछ कुछ नए नए नाम आ रहे हैं बच्चों के। तो इसका मैं इन डेप्थ मीनिंग तो मैं आप लोग के ऊपर छोड़ूंगा जब आप लोग ट्रेलर देखेंगे। लेकिन बस ये एक नाम है, बहुत पावरफुल है। इट्स गॉट अ सिग्निफिकेंस बट आई विल लीव इट अप टू द ट्रेलर फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़ अबाउट। For me, I'm constantly evolving as an actor, and I love films where I get to learn skills. For Gully Boy, I was rapping. For Kho Gai, I learned stand-up comedy. For Gehraiyan, I learned Drowning. intimacy. Oh yeah, I remember that intimacy Yeah. coach. Yeah. And I think for this one, it was a prerequisite. It's an action film, such a big film, so I had to just go for it. And I have a little bit of background of martial arts, and I always wanted to showcase. I still remember the first time when I went to Ritesh sir after Gully Boy, and this was actually the first film I signed after Gully Boy. It obviously took a long time because it's a big one, and thank you Farhan sir and Ritesh sir to actually showing that faith to mount such a big film on a newcomer. I would say that this was the first film, and I went up to him and I was like, he's like, what do you want to do? I was like, I want to do action. And I had my show reels of the action stuff which I was learning through my struggling days on Juhu Beach and doing my martial arts with my coach. So I had a cut reel of that, and I sent it to Ritesh sir, and I said, sir, please can I do an action film? And luckily that time I think Farhan sir and Sridhar sir were coming up with this this magnum opus story, and Ravi sir was on board. So yeah, we jammed, and it just came to life. So I'll tell you what went on in my head. We shot this film for a while because it's this massive film. We shot all over the place. And when I saw some shots, when I saw a few things recently, a few months back, my first thought was, it's so stylish and it's so slick, and it's something that I as an audience haven't seen in a very long time. So it excited me as an audience, not even as a part of the film. So I hope it has the same effect on everyone else watching it. And about Yudra, I think he's done some pretty intense and cool stuff in the film. I mean, you'll see it very, very soon. But I can't wait for the world to watch all the magic he's created. बहुत ज़्यादा फिजिकली तो हम जूझे ही हैं इसमें, बहुत कशमकश किए हैं हमने, मगर साइकोलॉजिकली भी बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ है मेरा इस फिल्म के दौरान बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर। सो देखिए, बहुत मेहनत की है सबने, बहुत खून पसीना एक किया है, बहुत वक्त जब टीनेजर था तब शुरू की थी फिल्म। अब बड़ा हो गया हूँ। सो यस, ये मैंने शूट बहुत पहले कर ली थी किल से, एंड दिस इज़ माई, ये बहुत दिल के करीब है ये फिल्म, क्योंकि बहुत समय दिया है मैंने इस कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए। और चलो शारीरिक तकलीफ़ें तो हुई हुई, लेकिन मानसिक तकलीफ़ें भी बहुत हुई मुझे इस कैरेक्टर के लिए। बट हाँ यार, थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है एक्शन करने में आजकल, है ना, मज़ा आता है। मुझे मौका मिला है इतना बड़ा बनने का, मेरे को जो बनाना चाहे मेरे को, अगर वो खम्बा भी बनाता अपनी फिल्म में बन जाता। वो मौका मिला है मुझे विलन का, तो मैं विलन से ही कर रहा हूँ। हीरो का मिलेगा तो हीरो कर लेंगे, लेकिन क्या है, मज़ा आता है विलन में, थोड़ा फील है। शाहरुख सर ने भी विलन से स्टार्ट किया था ना। बिल्कुल।
तो ऐसे ही कुछ मुझे लग रहा है, क्या पता हो जाए. Farhan and Sridhar narrated the story, and I knew then it had something which had very Shakespearean, Hamlet sort of a thing inbuilt in it. So it's a classic revenge, tragic tragedy story. So I thought it's the best skeleton that they worked on as a design. And it is about this kid who can't control his anger and the rage and what it does to him. I was waiting for the right project to work on. You know, मेरा mentality हमेशा से ऐसा रहा है कि I've never believed in taking up work for the sake of it. It has to be something that calls out to you. It has to be a good team. So when Yudhra came my way, I was like, everything from the makers to Ritesh, Farhan, to Ravi sir, I was like, this is fantastic. Plus it had Sid, and it was a genre I'd never done before. So it felt like the perfect film to, come to Bollywood with. My character she brings the soft part to the film. क्योंकि इतने मर्द है, इतनी एक्शन है, that she brings the tenderness, the much needed feminine energy, the softness, the cuteness to the film. So I think all of those scenes are. But you want them to But- watch the film and I do have one scene where I'm not very soft. I think he's referring to that. it's a long one. You kill a lot of bad guys. Yeah. Killing them softly, I would So say. even I got one scene to take off, vent all my pent up anger in life. मुझे थोड़ा मौका मिला है. So देखिए मेरे लिए एक्शन हमेशा ड्रामा से रूट होता है. एक्शन कभी भी मेरे लिए वो नहीं रहा है मज़ेदार जिसमें बस लोगों को मार रहे हैं. उसके पीछे एक पर्पस होना चाहिए, उसके पीछे कुछ एक मतलब एक हर्ट होना चाहिए, उसके पीछे कोई कहानी होनी चाहिए. और आई थिंक द biggest action hero we've ever had, as you know, the documentary sir has produced, is Mr. Amitabh Bachchan. जब मैं दीवार देखता था बचपन में, तब मुझे लगता था यार ये एक्शन फिल्म है. लेकिन अगर आप देखेंगे ध्यान से तो उसमें सिर्फ एक ही एक्शन, लेकिन हर एक सीन ऐसा होता है जैसे लगता है कि यार अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, अब कुछ होगा. जैसा कि जाव साहब ने भी कहा था, मैं उनके काफ़ी इंटरव्यूज़ भी देख रहा था कि काफ़ी कैरिकेचरिश हो चुका है वो एक्शन का जो एक इमेज है एंग्री यंग मैन का, क्योंकि सब ने वहाँ से उठा के उसको कैरिकेचर कर लिया. बेमतलब में लोगों को मार रहे हैं, बेमतलब में चीज़ें हो रही हैं, just for the to get the eyeballs, just for the effect. But in this film there is a lot of depth and that's what I connected to. अगर मुझे ऐसी ही एक्शन फिल्म होती जिसमें मुझे बस स्टंट्स करने हैं या उछल कूद के मारना है या लोगों को मारना है और बस एक सिक्स पैक दिखा के हीरो मेरे लिए वो मज़ेदार नहीं होता है कभी भी. हमेशा मेरे लिए वो एक इंटेंसिटी, एक एंगस्ट, एक कहीं ना कहीं से जो होता है ना, वो एक आग होनी चाहिए अंदर, और भले अगर वो मारे भी नहीं. और जैसे कि बच्चन साहब का हमेशा आंखों में होता था, वो आंखों से फाइट करते थे. और लात तो बाद में, लंबी लात भी है तो लात तो बाद में लगती थी, लेकिन उनकी आंखों से जो गोलियां लगती थी वो कुछ अलग ही थी. सो मेरे लिए वो सबसे आई थिंक सुप्रीम एक्शन हीरो हैं. If action is choreographed well and performed well, it is art. मैं मानता हूँ, और वो मैं शुरू से, बिकॉज आई एम सो अवेयर ऑफ माई बॉडी बिकॉज ऑफ डांसिंग एंड परफॉर्मिंग आर्ट सिंस चाइल्डहुड, तो मुझे वो बड़ा मज़ा आता है करने में, और बहुत ही एक चाइल्ड लाइक सा है एक्शन, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. और मैं जिस तरह का मेरा कैरेक्टर है इसमें, तो अगर मुझे यहाँ मुक्का मारना तो कभी कभी यहाँ पर भी पड़ जाता था. तो वो ऐसा है, बट या मज़ा बहुत आता है मुझे एक्शन करने में, स्पेशली युद्रा में ना एक्शन इज़ वेरी स्टाइलाइज, और बहुत मुझे हीरो जैसी फीलिंग आ रही थी यार, टू बी ऑनेस्ट. मुझे बहुत मज़ा आया शूट करने में भी, सर के साथ भी हमने बहुत मज़े लिए. पोर्चुगल गए, विलायत जाने का मौका दिया सर. तो वो एक बहुत मज़ा आता है, और थोड़ा काम आता है आपका डांसिंग बैकग्राउंड. इतने सारे किरदार हैं महाभारत में वैसे, लेकिन मैं अगर सच में सोचूं तो हमेशा एक ही किरदार जिससे मैं जुड़ पाया, मतलब जिससे मैं रिलेट कर पाया हूँ, वो करण था. और पता नहीं क्यों हमेशा से जब भी मेरे दादाजी सुनाया करते थे वो कहानियाँ, तो करण था और एक अर्जुन था, दो थे सबसे ज़्यादा. लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और जैसे जैसे मैंने ज़िंदगी देखी, ज़िंदगी का थोड़ा तजुर्बा हुआ, तब ज़्यादा खिंचाव मेरा करण की तरफ ज़्यादा हुआ.
एक्चुअली सच बताऊं तो ये पहली फिल्म थी जो मैंने साइन की थी गली बॉय के पास, जैसे कि मैंने पहले कहा. और व्हाट इंस्पायर्ड मी वाज द पीपल हु आई ऑलवेज लुक्ड अप टू, जिनके साथ मुझे हमेशा काम करना था. फरहान सर, उन्होंने स्क्रीन प्ले, स्टोरी, डायलॉग्स. श्रीधर सर, रितेश सर, रवि सर. और इससे ज़्यादा एक्साइटिंग सेटअप, क्योंकि जब एक कहानी एक्सेल जब भी एक कोई कहानी बनाता है वो सिर्फ बनाने के लिए नहीं बनाता. कहानी आई थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनीथिंग विच इज़ प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ एक्सेल. सो द स्टोरी is what actually I connected to. The story is what I really loved, and I wanted to do it, and the people who are making it, and to just, I think I was I got lucky with that I got such a big film, and especially right after Gully Boy, just one film old, that too not the lead guy, supporting actor in that, and to just mount such a big film. I think it's Ritesh sir and Farhan sir who actually had shown faith in me. ये मतलब मेरा से कहूँगा, अगर इतनी बड़ी फिल्म कोई आपके पास लेके आता है तो मतलब ये तो मेरा सौभाग्य है, मुझे ऐसा लगता है. तो I'm lucky to be able to do what I always love to do. अभी मैं वैसे एक बात कहना चाहूँगा, अभी इतना कॉर्पोरेट सिस्टम हो गया ना फिल्म्स का भी, कि 2 महीने में 4 महीने में रेडी करके दो, डेडलाइंस. तो पहले तो मुगले आजम बनती थी ना, तो कोई सवाल नहीं करता था. अभी ये फिल्म जो जमा टिका के हमने बनाई है और स्टाइलाइज्ड वे से बनाई है, इसको कुछ चीज़ों को, कुछ बेमिसाल चीज़ों को वक्त लगता है, और ये उनमें से एक है. आई थिंक रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी.